क्या होता है ऑब्जर्वेटरी? जहाँ से स्टार्स जहाँ और पर प्लैनेट्स को स्टडी स्टार करते हैं, और ये ऊंची जगह, इसमें नैनीताल के बगल में है, ऊंची जगह पे। और तमिलनाडु में कवलूर, कवलूर, और नैनीताल के बगल में मनोरा। ये पहाड़ियों का नाम है, यहाँ पे ऊपर है। स्टार्स प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो वेन्यू बप्पू कॉमेट का नाम भी है, क्योंकि उन्होंने उस कॉमेट को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये पढ़ो। the Earth rotates on its own axis in about 24 hours. The Earth's rotation from west to east causes day and night as well as the apparent motion of the sun, the moon, and the stars. The Earth revolves around the sun and takes nearly 1 year to complete a revolution. The Earth axis of rotation is not upright with respect to the orbit, but entitled. Seasons occur because of the टाइटल नहीं, tilt. टिल्टेड। टिल्टेड, टिल्टेड मतलब टेढ़ा है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। Season अगर occurs कर्व्ड नहीं होता because तो सीजन, मौसम जो होते हैं वो मौसम नहीं होते। season occurs because of the tilt of the Earth's axis of rotation and its spherical shape. A solar eclipse occurs when the moon is in the path of the sun as seen from the earth and sunlight. It is blocked from reaching the earth. The lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon, blocking sunlight from reaching the moon. हाँ, ये पढ़ो। ये पढ़ो। The Kodaikanal Solar Observatory is located in the beautiful Pla- uh, Palani range of hills in southern India. It was established in 18 it was established in 1899 and has provided data about the sun for over 100 years. It is operated by the Indian Institute of Astronomics IIA Bengaluru. ओके, ये फोटो भी दिया उसका। एक ऐप का नाम दिया है, देखो क्या नाम है। ये ऐप का नाम क्या लिखा है? Stellarium app. स्टेलार। स्टेलार मतलब रिलेटेड टू स्टार, स्टार से संबंधित चीजों को स्टेलार बोलते हैं। ओके, अब मैंने ये पहले क्यों रीड कराया? तुमको पता है ना सोलार एक्लिप्स क्या होता है, डू यू नो? अब ये पढ़ो, रीड करो। Day and night cycle season, the life on the earth so much is dependent upon the sun. Could the light from the sun get blocked by the two planets which are revolving between the earth and the sun? The planet Mercury and Venus appear very small compared to the sun and never block the entire light of the sun reaching us. However, you may be surprised to know that the moon can
do that. Do you remember studying in grade 6 that the moon is a natural satellite and the earth and it revolves around the earth. The earth revolves around the sun. तो मून तो बहुत छोटा है इन प्लैनेट से, लेकिन ये मर्क्यूरी वीनस इतने दूर हैं कि वो छोटे दिखाई देते हैं। पढ़ो। At certain times, the moon can come in between the sun and the earth in a way that obstructs the light from ऑब्स्ट्रक्ट, the ऑब्स्ट्रैक्ट sun नहीं, from reaching ऑब्स्ट्रक्ट। us. ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट है। Obstruct. This is known as a solar eclipse. You may wonder how the moon, which is smaller than the sun, blocks the light coming from the sun that we see in the sky. तो ये देखो, ये फोटो में ये लड़की क्या कर रही है? उसने एक आंख बंद कर दिया और एक आंख से थम से दूसरे वाले का चेहरा ब्लॉक हो जाता है ना? अब इसमें एक वर्ड दिया है, एपरेंट। एपरेंट मतलब जो है नहीं, जो दिखता है, जैसा अपीयर होता है, उसको बोलते हैं एपरेंट। ओके, समझ गए? Okay. आगे तो हाँ, रुको, तब तक कि तुम दो वर्ड्स को लिख लो, डिक्शनरी में लिख लो जल्दी से। the considered apparent. So apparent ना? एपरेंट। अच्छा डिक्शनरी में ढूंढूं. एपरेंट मतलब जैसा वो अपीयर होता है। अपीयर वर्ड से आया है एपरेंट। दिखता है, वैसा होता नहीं है। तो अब तुम्हारे हाथ तुम्हारे नजदीक है, इसलिए तुम बड़े बड़े चेहरे को, बिल्डिंग को भी उससे ब्लॉक कर सकते हो, है ना? हाँ. समझे? तो आगे पढ़ूं. हाँ, पढ़ो पूरा। You can cover the entire head of your friend with the help of your thumb, even through your even through your thumb is much smaller than the actual size of the ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। क्या हुआ, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? अरे
सर स्टार्टिंग से पढ़ूं क्या? हाँ पूरा पढ़ो। You can cover the entire head of your friend with the help of your thumb, even though your thumb is much smaller than the actual size of your friend. How could it be the size of any object as seen by your eye, also known as apparent size, depends upon both its actual physical size and its distance from you. The thumb begins much closer to you as compared to your friend. The apparent size of your thumb and your friend's head is seen by you in activity 12.4 as similar. हम्म। तो तुमको क्या मालूम पड़ा इसमें कि जो नज़दीक की चीज़ है वो तुम्हारे मून वो ब्लॉक कर देती है सन को। ठीक है। अब डू यू नो व्हाट इज इक्विनॉक्स? ये देखो Huh? ये टिल्ट होने से क्या होता है, पढ़ो ध्यान से। Places in the hemisphere receive sunlight for more than 12 hours during the 24-hour rotation of the Earth. Places in the hemisphere are in darkness for more than 12 hours during the 24-hour rotation of the Earth. अब ये ध्यान दो, ये एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, है ना। यहाँ पे भी हाँ सर। नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, और यहाँ पे साउथ पोल। तो अगर ये टिल्ट नहीं होता तो आधा आधा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टिल्ट होने की वजह से ये लोगों को लगातार 6 महीना दिन 6 महीना रात होती है। 6 महीना, ठीक है। हाँ। और लिखा हुआ है कि ये ये सब होता है क्योंकि ये टिल्ट है। अगर टिल्ट नहीं होता तो ये नहीं होता। इसके लिए मौसम होते हैं हमारे यहाँ पे। अभी ये पढ़ो ध्यान से, ये डायग्राम को पढ़ो, स्टडी करो क्या क्या लिखा है। मार्च महीने में नॉर्थ पोल पे लाइट रहती है, दिखा। हाँ। हाँ। और पॉइंट किया हुआ है उन्होंने, और पूरा हमेशा लाइट रहती है 6 महीना। मार्च, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर में नहीं रहती है। सितंबर से लेके दिसंबर तक अंधेरा रहता ओके। है ना। और मार्च से लेके हाँ। और दिसंबर के बाद से जून, जुलाई, अगस्त तक लाइट लाइट रहती है। तो सितंबर से उनकी नहीं। रात चालू होती है, तो इस समय उनके यहाँ पे रात चल रही है, सन दिखता ही नहीं है। दिखा, हाँ समझ में सर। आया। चलो, तो सीजन इसलिए होता है। तो सीजन का संबंध टिल्ट से है, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या दिया है उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज। हम्म, कॉलेज है। हाँ, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है?
बॉल बॉल घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, अर्थ कैसे घूम रहा है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। उसमें क्या दिख रहा है कि अर्थ का रोटेशन कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट है कि वेस्ट से ईस्ट ईस्ट है? सर वेस्ट से ईस्ट है। हाँ, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अर्थ स्पिन होता है अपने आसपास, उन्होंने यही चीज़ दिया होगा इस पर, रोटेशन दिया होगा। अब तुमको पता है सोलार एक्लिप्स क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं। ये देखो ये वाला डायग्राम, इसको स्टडी करो, इसमें क्या दिख रहा है तुमको? सर मून के कारण सन की रेस अर्थ तक नहीं पहुंच रही है। हम्म। अंधेरा है हम्म। उस जगह पे। और कुछ दिख रहा है तुमको? सब सारे वर्ड्स पढ़ो, कुछ तो और भी दिख रहा है, पढ़ो सारे वर्ड्स, पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। अंधेरा, सन ध्यान से पढ़ो। सर मून ढक जाता है। सारे वर्ड्स पढ़ो उसमें। अर्थ ऑर्बिट, टोटल सोलर इक्लिप्स, मून, पार्शियल सोलर पार्शियल, इक्लिप्स। पार्टियल नहीं, उसको लिखो अपनी डिक्शनरी में, पार्शियल बोलते हैं, श बोल देते हैं, पार्ट में आई लगा देंगे तो पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल। पार्शियल, पार्शियल क्या होता है अब बताओ, वो टोटल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है? ध्यान से डायग्राम समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। तो टोटल मतलब पूरा, हम्म। और पार्शियल कम, पार्ट मतलब मतलब आधा, एक पार्ट। आधा। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली अगर तुम सन का लाइन देखो, वो मून हम्म, और सन की लाइन को क्रॉस करो तो वो जो डार्क एरिया है वहां तो कंप्लीटली लाइट गायब हो जाएगी, हाँ जिसमें एरो करके दिखाया है, लेकिन बगल बगल में हल्की हल्की लाइट आएगी जो ग्रे कलर में है। ठीक है, तो वहां पे हाँ आधा सर। आधा रहेगा, सन एकदम आधा आधा दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, लाइट कम दिखेगी। हाँ तो सोलार टोटल कुछ सेकंड के लिए होता है। और एक बात, कॉशन, सोलार एक्लिप्स में हम सन को देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि सन इतना इंटेंसिटी होता है कि आंख खराब हो जाती है। अब ये देखो, अब तुमने देखा, अब ये देखो, तुमको एक डायमंड रिंग जैसा दिखेगा, हाँ डायमंड दिख रहा सर। है। थर्ड पिक्चर पे। हम्म। तो ये जब वो ए वाला, फिर बी, फिर सी, जैसे मूव होते जाता है, एक सेकंड आता है जब ये ऐसे चमचमकता है, इसमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, सन ग्लास भी नहीं यूज़ करना चाहिए, टेलीस्कोप भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे बाहर ये लोग ऐसे रखते हैं, देखो ऐसे डायरेक्टली ये लोग ऐसा ये बनाते हैं,
बॉल रखेंगे, इस पे मिरर मिरर रहेगा, उसमें से उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। ऐसे इवेंट्स होते हैं कंडक्ट, अच्छा। डायरेक्टली नहीं नहीं दिखाते। समझ गए? हाँ सर। अब देखो, ये पढ़ो जरा। So, as eclipse is known as Grahan in Sanskrit हम्म। and in many Indian languages, many ancient Indian astronomical texts provide calculations ca- to calculations to pred- predict eclipse. The best known and most referred text in the Surya Siddha, Siddhanta, सूर्य सिद्धांत। which is सूर्य क्या है वो? सूर्य सिद्धांत। Surya Siddhanta, हम्म। which is written in the classical Sanskrit poetry tradition, tradition in rhyme, rhythmic shloks. रिदम। रिदम। Rhythm, rhythmic shloks. हम्म। मतलब उन्होंने श्लोक में सारा कुछ सूर्य सिद्धांत का एक बुक लिखा है, जिसमें ये लिख दिया है कि कब कब होने वाला है। अब देखो, उन्होंने बहुत सारे रिदम लिखे हुए हैं, और लोगों को लगता है ये श्लोक है। श्लोक नहीं है, उसमें वो एक्चुअली वो बहुत कुछ डिटेल्स देते देते थे। तो पहले के आर्यभट्ट ने इस पर बहुत स्टडी किया हुआ था। अब हमारे देश में पंचांग नाम की बुक है। पंचांग बुक में हम कल सूर्य उदय कब होगा ये बता दिया है। अब उनको कैसे मालूम पड़ा? हजारों साल पहले वो बुक बनी हुई है, जिसमें आज का भी हर एक चीज़ का सूर्य सोलर एक्लिप्स कब होगा सब जानकारी है। चलो अब ये पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। Just um, just as a man in a boat moving forward sees sta- stationary object as moving backwards, स्टेशनरी, so स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी। also stationary object as moving backward. So हम्म। so the star that are stationary are seen by people of Lanka as moving towards the west. हम्म। तो अब ध्यान से देखो कि Aryabhat, हम्म, तो अब तुमको ये देखना है कि एक श्लोक लिखा है। ये किसने लिखा है श्लोक? पढ़ो, ये श्लोक किसने लिखा है? अरे पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, श्लोक किसने लिखा है? रीड the करो। Aryabhatta, आर्यभट्ट। Aryabhatta. उन्होंने बुक लिखा आर्यभट्टीय। अब कब कब लिखा था ये बुक? The 50th century man. 5th सेंचुरी, मतलब आज अभी चल रहा है 25th सेंचुरी, 2000 साल पहले। अब 21st सेंचुरी, तो मतलब सोचो कि 1500 साल पहले। अब उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है वर्ड्स, एक अनुलोम विलोम लिखा है। अनुलोम गतिस्थ पस, पसस्- पश्यत्य अचलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् सम पश्चिम। पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट। अगानी लंकायाम, मतलब
तुमको लिखा है नीचे ना कि जैसे कि अ, जो आदमी को अगर आप मूव कर रहे हो बोट में तो आपको हर हर चीज जो पेड़ भी आपको दिखेगा कि वो हिल रहा है, वैसे उन्होंने हाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मतलब उस जमाने में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था। और ये सोलार एक्लिप्स की स्टडीज उन लोगों ने की थी। तुमने वीवीएम एग्जाम दिया था? हाँ सर। तुमने वीवीएम एग्जाम नहीं दिया था? नहीं नहीं। यही तो गलती कर दी ना। मेन मेन एग्जाम ने देना चाहिए था तुमको, उसमें ये सब, उसमें ये एक सिलेबस है, सब्जेक्ट है। और मैंने अपने चैनल पे उसके भी वीडियो बनाए हैं इसके बारे में, तुमने नहीं देखे होंगे शायद, है ना? आई एम श्योर तुमने नहीं देखा है। क्योंकि तुमको यही पता नहीं है कि हमारे देश में आर्यभट्ट नाम के और लोगों ने क्या क्या इन्वेंशंस किए थे। इनफैक्ट आज का मॉडर्न साइंस में सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हमने पहले से ही किया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम भी पहले से हमने ढूंढ के रखा हुआ है, बहुत कुछ। अब ये क्या है, लूनार एक्लिप्स। लूनार में क्या होता है देखो। क्या होता है? तो अर्थ के ऊपर डायरेक्ट रेस पड़ रही है और मून पीछे साइड है। सारे वर्ड्स पढ़ो। अर्थ ऑर्बिट, मून ऑर्बिट, पार्शियल लूनार इक्लिप्स, मून पार्शियल लूनार इक्लिप्स। अब समझाओ। पार्शियल अब तुम समझा सकते हो ना? सर इसमें अर्थ अर्थ के एक इसमें अर्थ के एक भाग में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और पार्शियल लूनार इक्लिप्स में हाफ सनलाइट है और हाफ डार्कनेस है और पीछे साइड पूरा अंधेरा है। हम्म, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। वेरी क्लियर। हाँ अब स्टेलरियम ऐप को आज डाउन करके देखना क्या है। ठीक है। चलो अब तुम ब्रेक लो और मैं तुमको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करना। और अपने चैनल ओके। पे जाके वीवीएम का जाके देख लेना, क्योंकि तुमको पढ़ना। अच्छा, हाँ अब तुम्हारा बताओ, तुम्हारे सिक्स स्टैंडर्ड में कितने चैप्टर्स पूरे हो गए पढ़ के, कितना बाकी है बुक में? तो चैप्टर नंबर 1 हो गया है, 2 भी इसमें है। कौन सा बाकी है वो बताओ मुझे, तो हम लोग नेक्स्ट वही करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे लिख के भेजो ग्रुप में कि ये वाला, तो हम लोग वो करेंगे। हाँ क्योंकि मुझे उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, देखता हूँ है कि नहीं तुम्हारी बुक। सिक्स 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 की तो नहीं है, सिक्स की तो नहीं है, हाँ। तुमको वो चाहिए था ना? और कौन सा चैप्टर बताओ। तो आपको डायरेक्ट मैं ऐप पे मैसेज भेजती सारे चैप्टर के रुको। नाम जो बचे। एक मिनट। हाँ, बोलो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, 6, फिर फोर का पेज नंबर बताओ। 4 का पेज नंबर है 106, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो नाइन 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 आ गया। यही टेक्स्ट बुक है ना? तो एक्चुअली मेरी इंटीग्रेटेड है। हाँ, तो वो मुझे उसके फोटोज भेजो, फिर वो करेंगे, ठीक है। ओके। हम्म।
सर अभी डायरेक्ट 12 बजे क्लास है ना। नहीं नहीं